Good morning, everyone. What did we discuss in the previous class? We discussed the meaning of marketing. Yes, sir. Okay, what is marketing? Is it same as selling or is it different from selling? It is So different. marketing is not same as selling. Yes, selling is It, just the exchange of goods and services in return of consideration. Whereas marketing is a very broad term. It includes selling, and apart from selling, it starts even before production of goods by identifying the customer needs, then designing the products which can best satisfy those needs, then promoting those products, selling those products, providing good service to the customers both before and after sale. So marketing is a comprehensive term, right? And we discussed various marketing management philosophies also yesterday. The first one was production concept. In production concept, the main focus of the firm or the company is on mass. keeping the price low Yes, and keeping, widely spread the product. very good. Mass production and keeping the price low. Then next was product concept. In product concept, the main focus is on, So to improve the quality of the product and improving it continuously after every development. yes, excellent, on product quality. Then third is selling concept. The firms which follow selling concept mainly focus on, Advertisements and different techniques to give the people to aware about their products. very good, absolutely, advertising and other sales promotion techniques. Then marketing concept, the main focus is on, So sir, they on the customers need satisfaction and what is their demand. absolutely, on customer need satisfaction. The main focus is on customer need satisfaction. And what is this societal marketing concept? And marketing concept. Sir, it is related to social work and welfare of the people. Yes, satisfying the customer needs along with taking care of the environment, along with taking care of social, ethical, and ecological aspects. Now we come to features of marketing. First feature is creating market offering. A business firm, in order to expand its market share, has to keep adding more and more customers to its existing customer base. कस्टमर्स कब कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे? जब उनके काम का होगा। तो कंपनी ने कोई ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना है जो मार्केट में ऑफर किया जा सके, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जिसकी लोगों को जरूरत हो। ठीक है, सो क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग रिक्वायर्स exploring and identifying needs and requirements of customers and creating a complete product offer in terms of size, quantity, quality, etc., available at a specific price at convenient locations as per the customer requirements. Customers की जैसी requirement है, उस साइज में, उस क्वांटिटी में, उस क्वालिटी की चीज जब उन्हें मिलेगी तब वो खरीदेंगे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाना
मार्केटिंग में मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Second feature is satisfying needs and wants. Suppose मार्केट में फूड आइटम की वांट रिक्वायरमेंट है, तो आपने कोई फूड आइटम बना दी, लेकिन क्या वो फूड आइटम उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है प्रॉपरली या नहीं, ये भी ध्यान में रखना है। फूड आइटम आपने ऐसी बना दी जिसका टेस्ट ही किसी को पसंद नहीं आ रहा, तो कस्टमर्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेशक प्रोडक्ट ऐसा है जो कस्टमर्स को चाहिए, लेकिन जिस तरह का चाहिए उस तरह का नहीं है, मतलब उनकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, then they will not accept it. So main focus in marketing is on satisfying the needs and wants of customers. It is said a satisfied customer is the best publicity for goods and services. अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड हैं तो आपको किसी एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे वो सबको बताएंगे अपने कॉन्टैक्ट्स में कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है? ऑन द अदर हैंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड नहीं है आपके प्रोडक्ट से या आपकी सर्विसेज से, दैट कस्टमर और दोस कस्टमर्स विल टेल ऑल देयर कॉन्टैक्ट्स कि ये प्रोडक्ट मत खरीदना, इनसे मत खरीदना, बहुत बेकार प्रोडक्ट है या बहुत बेकार सर्विस है। तो फिर आप कितनी भी एडवर्टाइजमेंट करते रहो वो सारी बेकार हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं इस बात पे जब उनका कोई नोन उन्हें कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करता है या कोई प्रोडक्ट कहता है कि ये मत खरीदना। ठीक है? तो इसलिए कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना बहुत जरूरी है। यस आदित्य, कुछ कह रहे थे आप? Yes, sir. No, sir. ओके, मुझे लगा कि शायद कुछ कहना चाह रहे थे। Business should develop and distribute products and services which meet the requirements of customers to their satisfaction. It should also ensure regular supply of goods and services of high quality at reasonable prices to keep the customers satisfied. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Third point is customer value. As we said, customers will buy a product only if they consider it valuable. Means if they value the benefits derived from the product are equal to or more than the price they are paying. आपने इकोनॉमिक्स में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या कहता है वो लॉ? Law of diminishing marginal जैसे प्राइस when the price increase the demand falls. हाँ, ये जो आप बता रहे हो ये लॉ ऑफ डिमांड है। As the price increases, demand falls. When the price decreases, demand increases. Law of diminishing marginal utility ये कहता है कि कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट की एडिशनल यूनिट तब खरीदेगा जब उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, सॉरी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे एडिशनल प्रोडक्ट यूनिट्स कंज्यूम करता जाएगा कस्टमर, उनसे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कहता है? कस्टमर विल कीप ऑन बाइंग द एडिशनल यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज द मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो जाएगी तो फिर वो यूनिट कस्टमर नहीं खरीदेगा। ठीक है? कई बार होता है ना, हम कोई आप कोई मूवी देख के आते हो, आप कहते हो वाह क्या बढ़िया मूवी थी, पैसे वसूल हो गए। पैसे वसूल हो गए मतलब जितने आपने खर्चा किया आपको उसके बराबर या उससे ज्यादा की वर्थ लगी मूवी की। और कई बार कोई मूवी पसंद नहीं आती है, हम कहते हैं पैसे बेकार हो गए, बर्बाद हो गए। मीन्स जो मूवी की इतनी वर्थ नहीं थी जितना हमने खर्चा किया। सो
customers will buy a product only if the satisfaction they derive from the product is more than or at least equal to the price they are paying. Otherwise, they will not buy it. Clear? Sir. Next is exchange mechanism. The process of marketing involves selling, means exchanging the product from the seller to the customer and in return of some consideration from the customer to the seller. A proper exchange mechanism needs to be developed, giving customers convenient and economical options of buying the product and making its payment. ठीक है? एक्सचेंज कब होगी? जब कस्टमर कन्वीनियंटली प्रोडक्ट को खरीद पाएगा और उसकी पेमेंट भी कर पाएगा कन्वीनियंटली. इट कुड बी थ्रू रिटेल स्टोर्स, इट कुड बी थ्रू वैल्यू पेएबल पोस्ट, बाय कुरियर, बाय पोस्ट प्रोडक्ट भिजवा दें. It could be through online booking and payment, which is very popular these days. Okay, etc. So there are some important conditions for a marketing exchange. Marketing exchange और कुछ नहीं है, selling का ही नाम है. Selling is also called marketing exchange. ठीक है, तो selling होने के लिए या marketing exchange होने के लिए क्या क्या conditions जरूरी हैं? First is प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज, बायर एंड सेलर. कम से कम 2 लोग तो चाहिए, एक सेलर एक बायर, तब सेलिंग होगी. देन बोथ पार्टीज हैव समथिंग वैल्यूड बाय द अदर. सेलर के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर को जिसकी जरूरत है, और कस्टमर के पास मनी है या और कोई कंसिडरेशन है जिसके बदले में सेलर उसे प्रोडक्ट बेचने को तैयार है. Both parties are free to accept or reject the offer. कोई जबरदस्ती नहीं होती सेलिंग में कि सेलर कहे कि नहीं जी अब आपने प्रोडक्ट देख लिया है तो अब तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, या कस्टमर कहे कि नहीं आपको तो ये प्रोडक्ट मुझे बेचना ही पड़ेगा. No compulsion. Both parties are free to accept or reject the offer. Each party desires to deal with the other. ये भी जरूरी है. सपोज आप किसी शॉप में गए, आपको एक प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगा, पसंद आया उनकी विंडो डिस्प्ले में, लेकिन जैसे ही आप अंदर गए आपने देखा शॉपकीपर तो कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप पसंद नहीं करते, आप उससे बात भी नहीं करना चाहते, तो सेलिंग नहीं होगी, एक्सचेंज नहीं होगी. कब होगी? व्हेन ईच पार्टी डिजायर्स टू डील विद द अदर. जब सेलर भी कस्टमर से डील करना चाहता है, कस्टमर भी सेलर से डील करना चाहता है, देन दिस एक्सचेंज विल टेक प्लेस. एंड फिफ्थ पॉइंट, ईच पार्टी इज केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी. अगर कस्टमर सेलर को समझा ही ना पाए कि उसे क्या चीज चाहिए, सपोज दोनों को कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं आती, या सेलर कस्टमर को अपनी बात ना समझा पाए, तो भी एक्सचेंज नहीं हो सकती. So both should be capable of communication. Second is both should be capable of delivery. Seller ने deliver करने हैं goods. Suppose कोई heavy product है, customer गया किसी showroom में, उसे product पसंद आया. Now customer says कि ठीक है आप इसे मेरे घर भिजवा दो, लेकिन seller कहता नहीं हमारे पास ऐसी कोई facility नहीं है, आपको उठा के ले जाना पड़ेगा खुद ही. तो कस्टमर एक्सचेंज नहीं होगी अगर कस्टमर को लग रहा है कि नहीं मैं तो खुद नहीं ले जा सकता. इसीलिए बहुत सारे सेलर्स होम डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. सिमिलरली कस्टमर अगर कहता है कि आई वांट टू मेक द पेमेंट थ्रू ऑनलाइन वॉलेट, मैं भीम ऐप के थ्रू, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, आई एम नॉट कैरिंग कैश, आई डोंट हैव एनी कार्ड ऑल्सो, लेकिन सेलर कहता है कि नहीं जी हमारे पास तो ये ऑप्शन नहीं है, हम तो कैश या कार्ड से ही पेमेंट लेते हैं, अगेन एक्सचेंज नहीं हो पाएगी. इसलिए ज्यादातर सेलर्स आजकल बहुत सारी पेमेंट की ऑप्शंस भी रखते हैं. द कस्टमर कैन पे इन कैश, और द कस्टमर कैन पे थ्रू कार्ड्स, द कस्टमर कुड पे थ्रू नेट बैंकिंग, द कस्टमर कैन पे
through online wallets or apps, UPI like Bheem. तो ये सब इसीलिए रखा जाता है ताकि कोई कस्टमर इस वजह से वापस ना जाए कि जो पेमेंट जिस मोड से वो करना चाहता है सेलर के पास वो मोड एक्सेप्टेबल नहीं है. क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Now we come to the main term, marketing management. Management, as we know, is the planning, organizing, directing and controlling. तो marketing management क्या होगी? सर जो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Very good. Planning, organizing, directing and controlling the activities relating to marketing of goods and services to satisfy the customer needs, that is marketing management. Now we come to functions of marketing management. First function is gathering and analyzing market information, जिसे हम market research भी कहते हैं या market survey भी कहते हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करना मार्केट से मतलब कस्टमर से. जब हम किसी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट कहते हैं तो मतलब कस्टमर्स. तो कस्टमर से इंफॉर्मेशन गैदर करना और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना. किस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कस्टमर से? उन्हें कौन से प्रोडक्ट की नीड है, कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है. वेरी गुड. और किस प्रोडक्ट को उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा. एब्सोल्युटली. टू फाइंड आउट द वांट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, क्योंकि अगर उनकी वांट्स एंड प्रेफरेंसेस हमें पता होंगी तभी तो हम उसके अकॉर्डिंगली राइट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाएंगे उन्हें एट राइट प्लेस एंड राइट टाइम. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स SWOT एनालिसिस. याद है SWOT एनालिसिस हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में भी डिस्कस किया था. क्या होता है SWOT? भूल गए. स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो SWOT एनालिसिस यूज होता है टू स्टडी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द बिजनेस फर्म. और जो इंफॉर्मेशन मिली है मार्केट से उसके बेस पे ये देखना कहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं और कहां थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट में, ताकि हम स्ट्रेंथ्स को यूज कर सकें, वीकनेसेस को ओवरकम कर सकें, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द थ्रेट्स. क्लियर? Yes, sir. Once we have gathered the information about the needs, wants, preferences of customers, next function is marketing planning. Means marketing strategies decide करना अपनी कि क्या marketing strategies हम use करेंगे जिनके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं. Then third is product designing and development. कस्टमर की नीड्स को, प्रेफरेंसेस को, वांट्स को ध्यान में रखते हुए अ सिस्टमैटिक स्टडी इज डन ऑफ प्रोडक्ट्स डिजाइन कि क्या कैसा डिजाइन होगा प्रोडक्ट का होना चाहिए. नेम डिसाइड करते हैं, कलर, साइज, ग्रेड मतलब वैरायटी, पैकिंग कैसी होगी, ये सब डिसाइड करना. दिस कम्स अंडर प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. In order to develop product that meet the requirement of customers. ठीक है, तो कई तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं. पहले जो क्रिएटिव टीम होती है, जो टेक्निकल टीम होती है, सब मिलकर 3-4 तरह के डिजाइन बनाते हैं. फिर उनमें से जो बेस्ट डिजाइन लगता है सबको, अप्रूव होता है जो, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है. क्लियर? Yes, sir. Then comes standardization and grading. Standardization मतलब प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड सेटअप करना कि हमारा प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड का होगा. स्टैंडर्ड मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. ठीक है. एंड मेंटेनिंग दो स्टैंडर्ड्स थ्रू क्वालिटी कंट्रोल.
और ग्रेडिंग का मतलब होता है अगर हम प्रोडक्ट को अलग अलग वैरायटी में अवेलेबल करवा रहे हैं, जैसे मिल्क है, टोन्ड मिल्क आता है, फिर डबल टोन्ड आता है, फुल क्रीम आता है, तो अलग अलग वैरायटी है, इसे कहते हैं ग्रेडिंग। तो अगर हम प्रोडक्ट को एक से ज्यादा वैरायटी में ऑफर कर रहे हैं तो किन किन वैरायटीज में ऑफर करेंगे, उसका प्राइस क्या क्या होगा हर वैरायटी का, वो आ जाएगा ग्रेडिंग में। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Then comes packaging and labeling. Packaging means designing and producing suitable packages for the protection of goods. The packaging should be designed in such a manner that it attracts the customer, at the same time makes the handling and usage of the product convenient. लेबलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर जो भी कुछ लिखा होता है या बना होता है, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग. पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑन द पैकेज एंड ऑन द प्रोडक्ट. क्लियर? Yes, sir. देन नेक्स्ट फंक्शन इज ब्रांडिंग. प्रोडक्ट का नामकरण संस्कार. जैसे हम सबके नाम होते हैं, क्यों होते हैं? Identity provide करने के लिए. आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए. नहीं तो किसी, सपोज अगर नेम्स नहीं होंगे लोगों के, आपने किसी को बुलाना होगा, सामने 20-30 लोग हैं, उनमें से किसी एक को बुलाना है, आप कैसे बुलाओगे? यू कम हेयर, यू कम, नो नो, लेफ्ट वाला नहीं, नहीं तुम्हारे लेफ्ट वाला नहीं, तुम्हारे राइट वाला, यही करते रह जाएंगे. ठीक है, कितनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. लेकिन नाम से जब हम बुलाते हैं, हमें पता होता है एग्जैक्टली किसको बुला रहे हैं, सबको पता चलता है कि एग्जैक्टली किसको रेफर किया जा रहा है. ठीक है. सिमिलरली प्रोडक्ट्स का भी नाम रखा जाता है, ब्रांड नेम रखा जाता है, सो दैट कस्टमर जैसे ही शॉप पे जाके बोले कि भाई ये वाला प्रोडक्ट दे दो मुझे, एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम वो बोले, ठीक है, पतंजलि के आटा नूडल्स दे दो मुझे, तो सेलर को पता है क्लियरली वो क्या मांग रहा है. अदरवाइज अगर नेम नहीं होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कस्टमर के लिए बताना कि क्या चाहिए और सेलर के लिए समझना. क्लियर? Yes, sir. देन कम कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू कस्टमर. ये टेलीफोनिक भी हो सकती हैं, ऑनलाइन भी हो सकती हैं, सेल से पहले भी और सेल के बाद भी. सेल से पहले कस्टमर इंक्वायरी करना चाहता है, पता करना चाहता है क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या फीचर्स हैं उनके, क्या प्राइस है. ठीक है, तो वो सब इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करना. देन होम डिलीवरी भी आ जाती है कस्टमर सपोर्ट सर्विस में. कस्टमर अगर चाहता है कि आप घर पे भिजवा दो तो उसकी, वो भी कस्टमर सर्विस का पार्ट है. एंड इवन आफ्टर सेल, अगर कस्टमर को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्ट के यूज में, तो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसे हेल्प प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना. ऑल दिस कम्स इन कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट द सक्सेस ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स ऑन three main things. One is good quality products, second is reasonable price, and third is this service. बहुत सी कंपनीज ये सर्विस वाले पॉइंट को इग्नोर कर जाती हैं. कई कंपनीज, उन्हें लगता है ठीक है हम प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं, प्राइस भी रीजनेबल है, तो सर्विस पे थोड़ा वो इतना फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते. कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है, कुछ कस्टमर्स की कंप्लेंट अटेंड हो पा रही है टाइमली, कुछ की नहीं हो पा रही. इसकी वजह से कस्टमर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर उन्हें अच्छी सर्विस नहीं मिल रही, और वो एक तो खुद दोबारा वो प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेंगे और बाकी लोगों को भी मना करेंगे. तो इसलिए सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, दे आर नोन फॉर देयर क्विक एंड प्रॉम्प्ट सर्विस. जितनी भी अच्छी कंपनीज होती हैं वो कोशिश करती हैं कस्टमर की अगर कंप्लेंट आई है विद इन 24 आवर्स उसको रिजॉल्व कर दिया जाए.
क्योंकि 24 आवर्स से ज्यादा देर तक अगर कंप्लेंट पेंडिंग रहती है विदाउट एनी जस्टिफाइड रीजन तो कस्टमर परेशान होगा। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। यहाँ पे हम वो वाली प्रमोशन नहीं बात नहीं कर रहे जो हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग में डिस्कस की थी। वहां पे किसकी प्रमोशन की बात की थी? एम्प्लॉय। यहाँ पे प्रोडक्ट की प्रमोशन की बात हो रही है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करना। देन कम्स प्राइसिंग। प्राइसिंग मतलब डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना कम भी प्राइस नहीं होना चाहिए कि लॉस हो जाए हमें, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि कस्टमर्स को बहुत एक्सपेंसिव लगे और वो खरीदे ही ना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड आपको पता है कि प्राइस जितना ज्यादा होगा उतनी डिमांड कम होगी। तो एक रीजनेबल प्राइस डिटरमिन करना, उस पे हम डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे, उधार देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कौन पे करेगा, हम पे करेंगे या कस्टमर पे करेगा, होम डिलीवरी चार्जेस सेलर बियर करेगा या कस्टमर बियर करेगा, ये सारी चीजें आ जाती हैं प्राइसिंग में। क्लियर? Yes, sir. Then comes transportation. There are various means of transportation: roadways, railways, airways, waterways, pipelines. तो हम अपने प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए इनमें से कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे या कौन कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे, डिसाइडिंग दैट। देन कम्स स्टोरेज। जो स्टॉक अभी सेल नहीं हुआ, रखा हुआ है हमारे पास, उसे स्टोर कैसे करना है कि वो खराब ना हो जाए, दैट कम्स अंडर स्टोरेज। क्लियर? Yes, sir. देन नेक्स्ट हेडिंग इज मार्केटिंग मिक्स। अभी दीपावली सीजन आने वाला है, दीपावली में गिफ्ट पैक्स चलते हैं बड़े बड़े, देखे होंगे आपने, है ना? Yes, sir. जैसे एक हल्दीराम का बड़ा सा गिफ्ट पैक है, उसके अंदर एक नमकीन, 2-3 तरह के नमकीन मिक्सचर हैं, 2-3 तरह की स्वीट्स का मिक्सचर है। तो वो पूरा का पूरा बड़ा एक मिक्स है और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो फर्दर कुछ चीजों के मिक्स हैं। तो इसी तरह से मार्केटिंग मिक्स जिसे हम कहते हैं, ऑल मार्केटिंग फंक्शंस एंड टूल्स used by the firms for marketing their products are collectively called marketing mix। और इस मार्केटिंग मिक्स में फिर 4 अलग अलग तरह के फर्दर मिक्स हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। ठीक है? A large number of factors affect marketing decisions. These factors are categorized into 2 main categories: controllable factors which are under the influence and control of the firm, जैसे ब्रांड नेम क्या होगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है प्रोडक्ट की, एडवर्टाइजिंग वगैरह कैसे करनी है, ये कंपनी के कंट्रोल में है, तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हो गए। नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स, इन्फ्लेशन रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, ये एक फर्म के हाथ में नहीं है। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. The controllable factors are used by managers as marketing tools to achieve marketing success. फिलिप कोटलर एक फेमस मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। He defines marketing mix as a set of marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. It is the combination of 4 interrelated components which constitute the core of a company's marketing program, also known as 4 P's of marketing. What are the 4 P's of marketing? I just told you. Product, price, place, and promotion. Yes.
प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो मार्केटिंग मिक्स में 4 मेन कंपोनेंट आते हैं। प्रोडक्ट मिक्स, जो अपने आप में कई फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड। फिर प्राइस मिक्स, फिर मतलब प्राइस से रिलेटेड क्या क्या डिसीजंस हैं वो उसमें आ जाते हैं। प्लेस मिक्स, प्लेस मिक्स मतलब गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए क्या क्या टूल्स डिसीजंस यूज होते हैं वो आ जाते हैं। प्रमोशन मतलब प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए जैसे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग वगैरह, ये सब आ जाते हैं प्रमोशन मिक्स में। क्लियर? Yes, sir. We'll stop over here today. Any doubt, anyone? No, sir. No, sir. Okay, thank you. Thank you, sir.